वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के द्वारा आयोजित ऑल इंडिया उर्दू बुक फेयर का हुआ आगाज। वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के ज़हर एहतमाम ऑल इंडिया उर्दू बुक फेयर का आज से आगाज हो गया। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु के हाथों उर्दू बुक फेयर का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर उर्दू अकादमी के वाइस चेयरमैन और सांसद नदीमुल हक ने कहा कि उर्दू जबान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उर्दू किताबें भी एक अहम किरदार अदा करती हैं। यही वजह है कि वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी उर्दू किताब मेले को खास तवज्जो देती है। उन्होंने उर्दू और अदब से मोहब्बत रखने वालों से अपील की कि वो इस किताब मेले में जरूर शिरकत करें। आपको ये भी बताते चलें कि ये किताब मेला 17 जनवरी से 26 जनवरी तक जारी रहेगा और 10 रोजा ऑल इंडिया बुक फेयर में हर दिन रंगारंग तहजीबी और फनकारी प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। इस मौके पर उर्दू अकादमी के तमाम अरकान भी मौजूद रहे। আমি এই উর্দু একাডেমির যে সম্মানীয় প্রেসিডেন্ট আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যিনি উর্দু ভাষার একজন গুণগ্রাহী, তার লেখায় উর্দু ভাষার কবিতা আছে, অনুবাদ আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে এই আজকে উনি এবং আমার সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান জনাব নাদিমুল হক আমাকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমাকে নাদিমুল হক আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমি আজকে বইমেলা উদ্বোধনে এসেছিলাম। এখানে উর্দু একাডেমির অনেক বিশিষ্ট মানুষেরা এখানে আছেন, কবি সাহিত্যিকরা আছেন, অনুবাদকরা আছেন, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা আছেন। এদের সবাইকে নিয়ে আজকে আমরা এই বইমেলা উদ্বোধন করলাম এবং এখানে এসে আমার খুব ভালো লাগছে এবং আমার মনে হয় যে আজকে নাদিমুল হক তার বক্তৃতায় উর্দু একাডেমির কাজ, উর্দু একাডেমি কী করতে চায় পুরোটাই বলে দিয়েছেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদ, মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা যে সবসময় উর্দু একাডেমির সঙ্গে রয়েছে সেটা, এবং কিভাবে এই বাজেট বাড়িয়ে নতুন নতুন ইনস্টিটিউট করে সেখানে বাংলা এবং উর্দু কী করে একসঙ্গে কাজ করতে পারে। আজকে নাদিমুল হক একটা চমৎকার কথা বলেছেন যে উর্দু এবং বাংলা এটা দুই ভাই না, আসলে দুই বোন। হ্যাঁ, তো এই কথাটা আমার মনে হয় যে আগামী দিনে আমাদের এই দুই ভাষার প্রচার এবং প্রসারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়ে উঠবে। I think we will collaborate together to promote our two languages. I will take the major poets of the Urdu poets from the Urdu poetry, and I will translate all those poetry in Bengali from the Bengal Academy, Bangla Academy. So, as my Honorable Chief Minister has suggested, work together, work quietly, and work with very the sense of our जो कहते हैं जो हमारे संप्रीति है उस लिए काम करो। तो this is the essence of Bengal, essence of Bengal। उर्दू एकेडमी का कामकाज कैसा चल रहा है नदीमुल हक की सरपरस्ती में? ये बोलने का कोई मेरे बताने की ये टाइम नहीं लगता। ये we don't you can't wait for my certificate. So this is he is doing his best of the lot, and this kind of work I think it will penetrate and it will circulate all over among the Urdu speaking human being or Bengali speaking human being। दादा इसी बंगाल में आप जैसे भाषा को जोड़कर कोलैबोरेशन करके आगे ले जाने की बात करते हैं, इसी बंगाल में बंगला पक्षों के लोग विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? वो हमारा वो जो कह रहे हैं उनका they all are you know they have their own opinion। Trinamool Congress and Mamata Banerjee doesn't endorse all those creation, all those divisions। We are want to go together। सर 2016 से टीचरों की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, 2016 से टीचरों की अपॉइंटमेट नहीं हुई। टीचर से क्यों नहीं हुआ आपको तो मालूम है, वो जो कोर्ट का जो ऑर्डर है अभी we have to wait for that, and I think we can recruit all Urdu teachers very soon। दादा सीएम ममता बनर्जी जो दादा लास्ट क्वेश्चन, सीएम ममता बनर्जी जो है फंड रिलीज कर रही है, 18 करोड़ कर दिया गया है, फंड रिलीज कर रही है, 18 करोड़ कर दिया गया है बढ़ा करके। उर्दू एकेडमी को काफी सपोर्ट कर रही है, मगर उर्दू स्कूलों का हाल बुरा हो रहा है। उर्दू accept your words। I think Urdu schools are very good and they are doing well।
future, they will do their bestest. And from the help of our all Urdu Academy member, particularly our Vice Chairman, I am very much close contact with him in very regular basis. So he is assuring me about all the Urdu schools. I know how they are going on, how beautifully they are going on. So we will work together in the future. भाई, इससे खुशी और तशफ़ी की बात और क्या हो सकती है कि हम लोग का जो प्रोग्राम मुनक्कद किए वो कामयाब है। आप लोग जर्नलिस्ट होके अब लोग खुद भी इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कितनी कामयाबी से ये प्रोग्राम हुआ है। तो और क्या है, इसी तरह और जितनी भी प्रोग्राम हैं, अल्लाह करे इसी तरह चलते रहे। आप लोग अपना इंटरेस्ट दिखाए और लोग तो आते ही हैं, भीड़ भाड़ भी ठीक रहेगी इंशाअल्लाह। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही है। काफ़ी लगभग लगे हैं 35-36, एक दो इधर उधर रुका हुआ भी है, कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से वो भी आ जाए। और इंशाअल्लाह पिछले साल से ज़्यादा फुटफॉल उम्मीद कर रहे हैं। और ये भी अब फुटफॉल ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि उनकी किताबों की बिक्री भी ज़्यादा होगी। तो हम लोग चाहेंगे कि भाई उनका सेल ज़्यादा हो, रेवेन्यू ज़्यादा हो, ताकि वो लोग आने वाले सालों में भी आते रहें और प्रॉफिट रहे उनके साथ। ये मकसद है उर्दू एकेडमी का कि बच्चों को इनकरेज करें। इसकी वजह से हम लोग उसको ट्यूशन देते हैं, ट्यूटोरियल्स होता है। अभी हम लोग उनको फ्री बुक्स भी देते हैं कूपन, ताकि वो ख़रीदे। बुक ख़रीदने से ये होता है कि एक लड़का अगर एक किताब ख़रीदता है तो लगभग घर में उसके 5 लोग पढ़ते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि हम लोग फ्री कूपन देते हैं बच्चों को, किताब ख़रीदे। तो ये एक्चुअली इफ़ेक्ट इसका स्पाइरल है। वो एक तो जो बेच रहा है उसका इनकम है, वो ख़रीद रहा है, खुद भी पढ़ेगा और लोगों को पढ़ाएगा और उर्दू की डेवलपमेंट भी होगी। बात ऐसा है कि तनकीद फॉर द से मैंने सिर्फ तनकीद के लिए ही तनकीद करना वो एक अलग बात है, उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अगर कोई कॉन्क्रीट बात हो, कोई बुनियादी मसाइल को सामने रखें कि ऐसा नहीं हो रहा, ऐसे ही बोल दीजिए कि भाई अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा क्या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, आप इस तरह से की बात सामने करें। एक ऐसा ही, ताकि वो मज़ा नहीं आ रहा बात में। भाई तनकीद तो सर आँखों पे, सजेशन सर आँखों पे, क्यों नहीं कीजिए। समाज में कोई काम कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, ख़ास करके अगर गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट का है, और हर इंसान का, ख़ास करके प्रेस वालों का हक़ है कि पूछे, तनकीद करे, मगर एक इसका पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए। नॉट इस तरह नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, सिर्फ कर रहे हैं तनकीद तो कर रहे हैं, कोई मैंने गुस्सा में कर, ऐसे नहीं होता है ना। पूरे टीम पे किया जा रहा है, सिर्फ नदीम साहब को छोड़ करके। अरे भाई, ये खास कुछ मकसद था क्या है नहीं करना? पता नहीं, ये तो नहीं है। और इस हर साल आप देखिएगा, पूरी टीम करती है। एक मिनट, ऐसा है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सुनने में आया हमको अभी तो कि ऐसा है। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि आप नदीम भाई के अलावा वो तो सर हैं, बगैर सर का तो और कुछ बॉडी तो चलता नहीं है। और उन्हीं के सारे प्लानिंग, उन्हीं के, और जो जितना सब कुछ करते हैं, जो उनको इंस्ट्रक्शन ऊपर से मिलता है, वो तो हम लोग को बोलते हैं। हम लोग, दूसरी बात है, हम लोग तो जनरल काउंसिल के मेंबर हैं जी से, तो हम लोग को जो बोला डाउन द लाइन ऊपर से जो डिसीजन आती है हम लोग उसको करते हैं। और हम लोग भाई सालों से जुड़े हुए हैं, वक्त देते हैं, आते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं और जितना हो सकता करते हैं। और ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि उर्दू ज़बान से मोहब्बत है, लगाव है। हमको उर्दू का मास्टर होना ज़रूरी नहीं है। उर्दू से मोहब्बत, उस तहज़ीब को बरकरार रखना है, उसको चलाना है। एक सोशल इवेंट करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, मिलाते हैं, उर्दू तहज़ीब की तरक्की हो, यही है सबके। देखिए, उर्दू प्यार मोहब्बत की ज़ुबान है और उर्दू का ये मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से जो उर्दू का 17वां मेला लगाया गया है, किताब मेला, ये हम सब उर्दू वालों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है और अच्छी बात है कि हम लोग जितने उर्दू वाले लोग हैं सब एक जगह आज जुड़ रहे हैं। यहाँ पर बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं और बड़े बड़े बुज़ुर्ग भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब नदीम उल हक साहब को, जो उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन हैं, और यहाँ की सरकार को भी कि उन्होंने ये किताब मेला लगाया है। और ये अपील करता हूँ कि इससे भी बड़ा किताब मेला उर्दू का होना चाहिए। जगह थोड़ी तंग नज़र आ रही है, इसमें और वुसअत की जाए और ज़्यादा दिनों तक उर्दू मेला को और बढ़ाया जाए तो और अच्छा लगेगा। और उर्दू को बढ़ावा देने के जो भी सिस्टम है या जो भी तरीक़ाकार है उसको अपनाया जाए।
तो इंशाल्लाह उर्दू बढ़ेगा, उर्दू के लोग शायकीन सब यहाँ जमा होंगे इंशाल्लाह। आज उर्दू का 17वां बुक फेयर हुआ है। मैं अपने ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि पहले उर्दू एकेडमी का बजट 2 करोड़ हुआ करता था, आज उसका 18 करोड़ हो गया है। अब सारी जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है, अपनी भी उर्दू को फ़रोग़ के लिए अपनी भी ज़िम्मेदारी होती है। हम लोग अब इस ज़िम्मेदारी को समझें कि भाई उर्दू की किताबें ख़रीदें, उर्दू के पेपर ख़रीदें, उर्दू के पेपर ख़रीद के पढ़ें। ये सब ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। हम अपने बच्चों को कि भाई ठीक है आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन घर में तो उर्दू की तरबियत दे सकते हैं। और उसमें उसको ये कि उर्दू से उसको दिलचस्पी पैदा करने के लिए घर का माहौल उस तरह का हो कि आप आदमी डैडी मम्मी वगैरह नहीं बोल करके, अरे भाई जो हमारे मज़हब में, जो इस्लाम में जो अदब है उस अदब में बात करें तो बच्चे भी इस पर ध्यान देंगे और बच्चे इस पर अमल करेंगे। अब लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ मुशायरा होता है, ऐसा बात नहीं। सिर्फ मुशायरा उर्दू एकेडमी कर रही है। अभी आसनसोल में एक बिल्डिंग बन रही है उर्दू एकेडमी की, एक इस्लामपुर में बन रहा है, तो सारे काम है, लेकिन मुशायरा भी इसका हिस्सा है, तो मुशायरा भी होना चाहिए। बहुत सवाल उठ रहे हैं आज इस महफिल में कि भाई सिर्फ उर्दू एकेडमी मुशायरा कराती है, तो ऐसी बात नहीं है। मुशायरा भी, और जो मशवरे हैं उनको देना चाहिए, वो उर्दू एकेडमी उसको लेने के लिए तैयार है कि आप लिख करके दीजिए, आपके जो मशवरे हैं उसको कबूल किया जाए। शुक्रिया।